Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Namaskar. On the occasion of World Cancer Day, we are sharing a story of resilience and hope with Banshri Das, mother of a cancer warrior. Warm welcome to you, Banshri. Thank you so much for joining us here. A word about Arunim Ankuran. Arunim Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. World Cancer Day is celebrated on February 4th every year. The goal of World Cancer Day is to raise awareness, improve education, and encourage action to prevent cancer deaths and improve access to care. The theme for each year focuses on a different aspect of the fight against cancer, such as improving access to care, reducing inequity, or promoting personalized care. Every story has the power to inform, to energize, and to inspire. The new World Cancer Day theme 2025-2027 is United by Unique. It places people at the center of care and their stories at the heart of the conversation. No two experiences with cancer are the same. Whether you're a person living with a cancer or a loved one, a medical practitioner, a supporter, or an advocate, you possess something important, a perspective that is unique to you. This is about building awareness and overcoming stigma. When you share your views, you bring valuable insight and humanity to the conversation. Your story can inform, energize, and inspire. So everyone has unique needs, unique perspectives, a unique story to tell. Yet people touched by cancer are united in a shared ambition to lower the cancer burden, to see cancer treated successfully, and to lead better lives with cancer. Every experience with cancer is unique, and it will take all of us united to create a world where we look beyond the disease and see the person before the patient. Aruni Mankuran is grateful to Banishri for sharing her personal story as the resilient mother of a cancer warrior. Once again, Banishri, we are so happy to have you here, and we really appreciate that you chose to share your story with us. Thank you, Progha. You are having me here, and it's very good, and it is the necessary and present in the society to spread awareness. So, because it's it's a journey that has so much of emotion in it and so much of struggle, so many challenges. But the whole journey starts with that day when the diagnosis happens. Or maybe even Yes. before that, when you are experiencing the symptoms and you're wondering what it is. So I will leave it to you, Banishri. Where do you want to start your story from? Actually, 2020 September, October, Hmm. he had fever few times in a month. Hmm. तो एंड मैंने पैरों में दर्द, Hmm. थोड़ा सा थकान, तो मैं मजाक करती थी क्या बुरा हो गया, तो ही वॉज देन 11-12 years old. Hmm. तो देन वी केम मुंबई. Hmm. तो मुंबई आने के 2 दिन बाद वी केम मुंबई 25 अक्टूबर 2020. Hmm. तो आने के 2 दिन बाद उसका फिर से फीवर आया, तो फिर डॉक्टर के पास गए. तो जैसे डॉक्टर को बताया जब 1 महीना में 2-3 बार फीवर आए हैं, उन्होंने थॉरो चेकअप किए. Hmm. तो एट दैट टाइम कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, हीमोग्लोबिन कम था, तो जस्ट उन्होंने यही कहा
जे ही इज हेल्दी, तो व्हाई हीमोग्लोबिन इज 10.6। तो उन्होंने सोचा क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए थे ना, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गुड बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम होता है ना, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जब गुड बैक्टीरिया अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजीन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब हो सकता है ये कारण होगा, नहीं तो ये हो सकता है जो न्यूट्रिशनल एनीमिक होगा। तो उन्होंने न्यूट्रिशनल एनीमिक का विटामिन, कैल्शियम ये सारे देने लगे। दो आफ्टर 2 मंथ इट डिड नॉट इम्प्रूव, वो और ज़्यादा ड्रॉप हो गया। तब उन्होंने कहा जो हिमाटोलॉजिस्ट के पास जाइए, शायद से उन्होंने कुछ सस्पेक्ट किया था। तो वहाँ पे जाके भी वही देखा गया, इसके बीच में बहुत सारे टेस्ट हो गया था। तो WBC एंड हीमोग्लोबिन दोनों ही दिन के दिन कम होता जा रहा था। फिर उन्होंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कम था, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम, पहले मेडिसिन दिया, ओरल मेडिसिन दिया तो कुछ नहीं हुआ। से देन उन्होंने कहा जो नहीं, अगर इंजेक्शन दे रही हूँ सबक्यूटेनियस, इससे ये माने 14 इंजेक्शन दे दीजिए, इसके अंदर अगर माने इसमें ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। तो 10 इंजेक्शन शायद से माने दे पाए हम लोग। उसके बाद उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था और दिन के दिन वो पेल होता जा रहा था। तो फिर डॉक्टर इन द मीन टाइम एक बार बहुत माने हाई फीवर, ऑल ऑफ अ सडन हाई फीवर हो गया था। देन डॉक्टर बोले जी नहीं, we have to do bone marrow test if you want to take মানে second opinion do it মানে as soon as possible and within 2-3 days आप ये करिए, माने बोन मैरो टेस्ट करवाइए। उसके पहले उन्होंने जैसे फीवर आया था ना, उन्होंने बताया जब पहले सीबीसी करिए, सीबीसी में 5 आ गया था हेमोग्लोबिन। तो देन उन्होंने कहा जी नहीं, वी कैन वेट, बोन मैरो टेस्ट कराना पड़ेगा। तो दूसरा डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी सेम सजेशन दिया। तो जिस दिन बोन मैरो टेस्ट हुआ था उस दिन माने डॉक्टर शाम को ही बोल दिए थे जे अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, तो इट कुड बी बोन मैरो फेलियर, नहीं तो बोन कैंसर। तो वी वर शॉक्ड, टेरिबली शॉक्ड। तो क्यों, कैसे हो गया? ही वॉज हेल्दी एंड माने बहुत ज़्यादा प्लेफुल था, बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग। तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रीजन। बहुत ज़्यादा, बहुत हजारों न्यूमेरस रीजन होते हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन से नहीं होते हैं। होता है एडोलेसेंट बच्चे से शुरू करके, नहीं माने इवन न्यूबॉर्न बेबी से शुरू होते हैं। एंड आई हैव सीन इन हॉस्पिटल 2 साल के बच्चे का भी हुआ है, एंड दे आर कमिंग एंड हैप्पीली माने टेकिंग केमोथेरेपी, दे आर प्लेइंग, दे आर हैविंग जूस, दे आर प्लेइंग विथ नट्स। तो बच्चे, बिकॉज अब बच्चे हैं ना, तो उन लोगों को उतना फ्यूचर के बारे में कोई ये नहीं है, माने चिंता नहीं है जे व्हाट विल बी, क्या क्या हो सकता है, जो बड़ों को होता है। तो वो लोग इतना प्लेफुली, माने ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम है, दे आर फेसिंग विथ माने स्माइली फेस। तो बच्चों को ये देखा मैंने, तो ही बोले। तो फिर उसके बाद बोले जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही था जे इज इट क्योरेबल। तो उन्होंने कहा इतने माने देखो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आर देयर, हाँ हम लोग बहुत ज्यादा माने ये करते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। हाँ ये तो बता दिया था। फिर ये 21 अप्रैल 25 अप्रैल ये सारी बातें हो गया। और ब्लड कैंसर का क्या होता है, देयर इज नो स्टेज। जब भी ये डायग्नोस होते हैं वो क्रिटिकल एंड इमरजेंसी हो जाते हैं। तो उसका 26 को डायग्नोस्ड हुआ, फर्स्ट में से उसका केमोथेरेपी शुरू हो गया था।
तो वो भी इसके अंदर माने इन बीच वो लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, इज इट जेनेटिक है कि नहीं, म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, तो काफ़ी सारे। तो इसका माने जेनेटिक एंड म्यूटेशन तो नहीं था, लेकिन दिसंबर अप टू दिसंबर माने मई टू दिसंबर डॉक्टर नेवर सेड जे नहीं ये क्योर हो जाएगा। दिसंबर में एक स्पेशल एक माने टेस्ट होता है, माने वो 2 बार हुआ है इसके केस में, तो एमआरडी टेस्ट बोलते हैं। तो वो टेस्ट के सेकंड टाइम जब टेस्ट हुआ, देन डॉक्टर बोले जे नहीं, ही विल बी क्योर, ही विल बी फाइन, क्योर हो जाएगा। उसके पहले कुछ नहीं, माने जब भी मैं पूछती थी बोलते थे जो व्हाट वी कैन से, ओनली होप। हाँ, तो ये है। लेकिन हाँ, जर्नी इज वेरी मच पेनफुल, वेरी मच पेनफुल, बट बच्चे हैं ना, दे टेक इट सो पॉजिटिवली एंड सो माने मेनली मेरे बच्चे को तो देखा, ही नेवर कॉम्प्लेंट। काफी सारे कुछ होते हैं, माने जब क्रिटिकल कंडीशन होते हैं ना, तो माने उसके बॉडी, उसके शरीर उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहते, और डॉक्टर एंड नर्स के ऊपर माने ये माने सबमिट करना पड़ता है। तो हाँ, एंड दे आर डूइंग, माने यहाँ पे इंजेक्शन, वहाँ पे इंजेक्शन, माने व्हाट एवर दे आर डूइंग, लेकिन कभी उसने ना हेजिटेट किया, ना कॉम्प्लेन किया, कुछ भी नहीं। वो माने ऑलवेज कोऑपरेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, माने बहुत बड़ी बात है, माने ये बोल सकते हैं। ये तो है, माने बहुत पेनफुल है जर्नी। और ये पेन यू कैनॉट शो या यू कैनॉट टेल। वो जो होता है रिमेटिक पेन होता है ना, पूरा शरीर में पेन होते हैं, लेकिन ही इज वेरी मच ब्रेव। मैंने वो हमेशा रहता था आफ्टर इवन उसका इंटेंसिव केमोथेरेपी खत्म हुआ है 31 जनवरी 2021 एंड मार्च से फ्रॉम मार्च से ही स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। क्या होता था तब भी उसका ये खत्म नहीं हुआ है ट्रीटमेंट, उसको स्पाइन में इंजेक्शन जाता था एंड स्पाइन में जब भी इंजेक्शन जाता था ना, तो शरीर में बहुत पेन होता था, और डोलो खा के माने खेलने जाता था। एक दोपहर में डोलो खा लिया, 5 आवर्स बाद फिर 1 घंटा खेलने के 1 घंटा पहले एक बार और एक खा लेता था। जब पेन नहीं होगा, लेकिन खेलना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, इससे उसको फायदा हुआ है मेंटली एंड फिजिकली। ये तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग केमोथेरेपी इफ यू आर माने अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो देन माने ब्लड कैंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है जो हाइजीन का, इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए अलूफ रहना पड़ता है। लेकिन ऑर्गन में जो होते हैं उसमें तो माने ब्लड का प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन ब्लड का माने काउंट तो लो हो जाते हैं, लेकिन तब भी मैं बोलूंगी फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, प्लेइंग, ये सारे कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है इसमें। इवन मैं भी रेगुलर वॉक एंड योगा नहीं छोड़ी हूँ, मानस ने भी नहीं मैंने नहीं छोड़ा, उसने साइकिलिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग। हम लोगों को जब भी टाइम मिलता था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो जब भी जो घर में रहते थे ना, तो हम लोग 20 मैंने एक दिन एक नाइट मानस रहता था, एक नाइट मैं रहती थी। हाँ, मैंने 15-16 डेज ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो हम लोग जब भी टाइम मिलता था, वॉक, साइकिलिंग, मैं भी वॉक, योगा, ये सारे मैंने कभी नहीं मैंने गिव अप की हूँ। जिन्हें घर में बैठ के रोना धोना शुरू कर दूँ, वो नहीं की, मैंने वो सारा कुछ कंटिन्यू की। और एक चीज मैं बोलूंगी, जे अगर ये किसी को कैंसर हुआ है ना, तो देन स्टार्ट स्टडी अबाउट द डिजीज, ट्रीटमेंट, प्रोसीड्यूर एंड मेडिसिन एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। तो चलता है जी कैसे मेडिसिन काम कर रहा है यार, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसके लिए कैसे कैसे रेडी होना है, ये हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ाई किए। तो डॉक्टर को भी ना एक पेशेंट के फैमिली माने
फैमिली के ऊपर एक फेथ आते हैं, तो वो भी माने निडर होके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम डॉक्टर बोलते थे जो उसका ये मेडिसिन अभी शुरू होगा, इसमें ये माने प्रॉब्लम होगा, तो और बाकी आप गूगल में पढ़ लीजिएगा। उनको पता है जो मैं पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता है सारा कुछ। तो इसीलिए मुझे पता होता था जी क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या-क्या डिफिकल्टीज आएगा, तो हम लोग मेंटली वो माने प्रिपेयर हो जाते थे। तो ये एक फायदा होता है। तो इसीलिए माने कैंसर हुआ है, बैठ जाओ, सारा कुछ बंद कर स्टडी करो जी कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट इज कैंसर डिजीज, हाँ, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेडिसिन क्या क्या लगता है, सारा कुछ। और वो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का माने रिसर्च पेपर है, तो इट इज वेरी मच माने गुड फॉर पेशेंट एंड पेशेंट के माने अगर रिलेटिव्स, हाँ, जो क्लोज वन रहते हैं, तो पता चलता है। ये मैंने स्टडी करना बहुत जरूरी है, मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि मुझे ये फायदा हुआ है। अभी जो ये तो बनश्री है। फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट शेयर्ड ना, मुझे लगता है कि द रोल ऑफ द माइंड, यू नो हाउ मेंटली समवन रिस्पॉन्ड्स टू द डायग्नोसिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये हाँ, और ये सुन के हम लोग वी आर टेरिबली शॉक्ड, हाँ, एंड देयर आर हजारों क्वेश्चंस इन आवर माइंड, राइट राइट जे क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक बिग क्वेश्चंस ऑफ राइट। माने लाइफ वाज हैंगिंग देयर, बट हम लोगों ने कभी पैनिक नहीं किया, पैनिक नहीं करो। हाउ डिड यू मैनेज दैट? हुआ, कैसे, मतलब क्या हाँ, क्या? हम लोगों ने अपने आप शक्ति आ जाते हैं, ये तो मैं बोलूंगी। हाँ, तो हम लोग, मैंने सच्ची में मैंने पैनिक नहीं किया, डर था। मैंने आपको बताया ना, जो डर के मारे लास्ट में मैं सो नहीं पाती थी, हाँ, जो कभी डर था, लेकिन डर के मारे हॉस्पिटल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी रदर इन हाउ माने अपने घर में, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉक्टर नर्स एंड बहुत सारे पेशेंट रहते थे, उन लोगों को दूसरों का पेन देख के तब लगता था मेरा बेटा का पेन तो कम ही है, हाँ। और कैन बिलीव इट, मैंने 2-3 डेथ भी देखी हूँ ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ। एक तो उसके साथ ही है 11 इयर्स की ओल्ड बच्ची है, उसका माने इसका अप्रैल में डिटेक्ट हुआ है, उसका मई में डिटेक्ट हुआ है, सेम डॉक्टर, बट उसके वो लड़की, वो बच्ची के फादर जो है, जब उसका माने 21 में डिटेक्ट हुआ है ना, उसके फादर जस्ट 6 इयर्स बैक कैंसर से माने उनका डेथ हो गया था। वो लड़की को 6 साल बाद माने ब्लड कैंसर हुआ, उसको माने बहुत स्ट्रॉन्ग जीन का म्यूटेशन हो गया था, और वी ऑल न्यू दैट शी विल नॉट सर्वाइव। लेकिन उसकी मम्मी को अगर देखोगे ना, उसकी मम्मी अकेली थी, वो अकेली थी, माने उसका कोई सिबलिंग नहीं था, उसके मम्मी उसको बोन मैरो माने डोनेट किया था, हाँ। उसकी मम्मी ने इतना लड़ाई की, इतना लड़ाई की, उसकी मम्मी को अगर देखोगी ना, माने यू कैन नॉट बिलीव इट, कहाँ ना उसने ट्राई किया, अमेरिका में, इजराइल में, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट जिष्णु से पहले खत्म हो गया था, फिर अप्रैल में फिर उसको रिलैप्स हुआ, तब जाके उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तब जाके उसके मम्मी ने उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, तो बोन मैरो उसी का ही देना पड़ा उसके मम्मी का, क्योंकि उसके सिबलिंग नहीं, कोई नहीं थी। तो फिर वो भी किया, वो करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर प्रॉब्लम होता होता गया, अल्टीमेटली शी पास्ड अवे ऑन इन 2023, हाँ, अक्टूबर महीना में। उसके पहले उसके मम्मी ने, वो तो बहुत पेन में था, मैंने यू कैन सी, यू कैन हियर इट, जो मैं मैंने
फ़ोन कर कर के बात करती थी, क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी, उसका बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, बाहर के लोगों से नहीं ये कर सकते थे यार, मैं डरती थी, उसी लड़की के सामने जाके मैं क्या करूँ? हाँ, तो और उसके मम्मी का इतना माने यू कांट बिलीव, उसके मम्मी ने माने और उसको सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका कैंसर सेल पहुंच गया था, तो अमेरिका से डिक्लाइन हो गया था, इजराइल से डिक्लाइन हो गया था, तब इजराइल में जस्ट प्रॉब्लम शुरू हुआ था। ओके। हाँ, फिर टाटा कैंसर हॉस्पिटल से वहां से भी डिक्लाइन हुआ हो गया था, लेकिन वो लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो उन लोगों ने बोला था जे, तो फिर ये सिंगापुर में भी वो लोग बोले थे जे ठीक है आप लेकर आइए, हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो टाटा इंस्टीट्यूट कैंसर इंस्टीट्यूट उसके मम्मी को बोले जे ठीक है तो आप जाइए, अगर नहीं होता है वहाँ पे स्विट्जरलैंड में है एक हॉस्पिटल, वो लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग वहाँ पे भेजेंगे। और जिनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होते हैं, जिनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के ज़रूरत होते हैं, टाटा कैंसर हॉस्पिटल हेल्प करते हैं। इवन बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे हॉस्पिटल भी है, दे आर मैंने रेडी टू हेल्प to support our financially इवन सबको करते हैं। मैंने हमें भी पूछा गया था जब कैसे कैसे क्या खर्च कर रहे, कैसे कैसे आपका ये हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। तो लड़की का वो बच्ची का अल्लाह कितना ही खराब है, जिस दिन उसका डेथ हुआ उसके जस्ट 2 दिन पहले सिंगापुर हॉस्पिटल से उसके पास लेटर आया जहां आप पेशेंट को लेकर आइए। उसके मम्मी के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, उसकी मम्मी ने अकेले सारा कुछ किया है। मैंने पहले तो हस्बैंड के साथ हुआ है, उस टाइम भी लड़ाई की है, उसके साथ बेटी के साथ हुआ है, और बेटी इतनी सुंदर दिखने में थी ना, क्या बताओ। तो दोनों का एक साथ ही ट्रीटमेंट होता था। तो मैक्सिमम डेज वो भी केमो लेने आती थी, मैं भी जाती थी, तो हम दोनों में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। तो ये भी देखी हूँ। तो जब हॉस्पिटल में जाके दूसरों का देखते हो ना, तब लगता है अपना दुख अपना कष्ट कम ही है, ये एक मोटिवेट करते हैं। जो कम्युनिटी है, that community understands each other's pain actually. यस यस यस, जो बाहर के लोग इवन नहीं मैंने नहीं समझ पाएंगे, वहाँ पे सारे सब एक दूसरे से बात करते हैं, कैसा चल रहा है, हम भी पूछते थे, वो भी एजेड भी हो बच्चे भी हो, कैसा चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है कि सही सही, तो उसमें ये हो जाता था। ये तो एक है। Banishri, this is a very simple question actually. जैसे कभी कभी ना डायग्नोसिस हुआ एंड एवरीवन कम्स टू नो, पीपल आर वेरी ऑकवर्ड अबाउट हाउ टू सपोर्ट द फैमिली। व्हाट इन योर एक्सपीरियंस क्या तुमको लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट दैट फैमिली विच इज गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस? सी हम लोगों को जब डॉक्टर ने बताया ना, तो हम लोग ने पूछा जे बच्ची को बताओ कि नहीं, मैंने मेरे बेटे को बताओ कि नहीं, जी नहीं, इफ वेरी फर्स्ट डे से आप बताइए। जी नहीं, नेट से तो कुछ स्टडी कर लेंगे तो कुछ माने उल्टा पुल्टा जान लेंगे। जी नहीं, कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नेगेटिव कुछ नहीं होगा, नेट में सारा कुछ पॉजिटिव है। और फैमिली में हम लोगों ने जो किया है, हमने सब कुछ सच सच बता दिया था, ये हुआ है। हाँ, मैंने मैंने हो सकता है ये बच्चा था इसीलिए हम लोगों ने सबको बता पाए, बड़ों के साथ होता तो क्या होता पता नहीं, वो नहीं बोल सकते। लेकिन हमने मैंने किसी से मैंने छुपाया नहीं, क्या छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये हमारे हाथ पे नहीं है, ये हो गया है, हो जाता है। वो मैंने बताया ना जिष्णु का ये जे बीमारी थोड़ी हम लोग चूज कर सकते, ये हो जाता है, राइट और राइट। हम लोगों को माने वहां से निकलना है, तो यही है। हाँ,
तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से इसको माने स्पोर्ट माने ब्रेवली लो एंड हम्म, आगे बढ़ो यस। एंड हेल्प करो। माने डॉक्टर रिलाई ऑन द डॉक्टर हम्म। बस। और जो सोशल सपोर्ट है, जैसे ऑफ कोर्स दैट कम्युनिटी इज ऑलरेडी क्लोज नेट, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो चाहते हैं कि कुछ किसी तरीके से सपोर्ट करें, व्हाट इज द थिंग दे कैन डू टू इमोशनली सपोर्ट अ फैमिली गोइंग थ्रू दीज चैलेंजेस? सपोर्ट बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। एक तो बहुत माने फियर है, बहुत भय है। हम्म। और दे थिंक जे कैंसर मीन्स डेथ या कैंसर मीन्स एंड ऑफ द लाइफ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये अगर जल्दी डायग्नोस्ड हो जाता है, इट इज़ क्योरेबल। ठीक है, सम केसेस में ये हम्म। सबके साथ सेम नहीं होते हैं। वहाँ पे जेनेटिक भी होते हैं, म्यूटेशन भी होते हैं। सारे कैंसर में म्यूटेशन भी हो जाते हैं, जेनेटिक्स भी आ जाते हैं। जिनके घर में 3 केसेस होते हैं तो वो हाई अलर्ट में हो जाता है, हम्म। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट उनके लिए अलग से करते हैं। हाँ, बट ये तो सारे टेक्निकल बात है। हम्म। हम्म। लेकिन लोगों में भय बहुत है, लोगों में उतना पेशेंस नहीं है सुनने की। हम्म। हाँ, तो कैंसर पेशेंट का लाई माने ये होता है कि दे आर फाइटिंग रेगुलर बेसिस। जैसे आज केमो दिया, उसके जो इफेक्ट होगा ना, लास्ट 10 डेज वो सस्टेन करेंगे। तो उस 10 डेज में उसका फिजिकल मेंटल बहुत सारे लो हो जाएगा। एट दैट टाइम दे अगर फोन करके कुछ बोलते हैं, मैंने भी सुना है। ठीक है, तो वो माने वो चीज सब लोग नहीं समझ सकते जे कैसे ये लोग जा रहा है। हाँ, हाँ। वो पेन सबको दूर से या फोन से नहीं पता चलते हैं। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन जिनके ऊपर से गुजरते हैं वो उसको ही पता चलता है जे कैसे वो जा रहे हैं, और उसके क्लोज वन को ही। हाँ, सो इन ये योर है। ओन एक्सपीरियंस बनश्री, क्या चीज ज्यादा कंफर्टेबल होती है? अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड एंड रिलेटिव है एंड दे आर फीलिंग कंसर्न, तुमको कंफर्टेबल लगता है अगर वो बात करे, वो डिस्कस करे, या फिर इट बिकम्स अ लोनली जर्नी अदरवाइज? यस, इट इज अ लोनली जर्नी। एंड मेरे ख्याल से ये मैंने कांटेक्ट में रहना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट दे आर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल माने रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होते हैं। ये क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, हम्म। हम्म। थोड़ा सा सुन लो। हाँ, हम्म। हो सकता है रोज रोज अच्छा नहीं लगेगा, रोज ना पूछो, लेकिन बीच बीच में अगर पूछ लो, पता कर लो, या बात कर लो, तो पेशेंट बोलो, पेशेंट के क्लोज वन को अच्छा लगता है। दिस इज नथिंग माने दे शेयर समथिंग विथ हम्म। अदर एंड दे फील माने रिलैक्स या दे फील गुड। हम्म। ये जरूरी होता है। सो ये ये एक मैसेज हम लोग, आई थिंक वी शुड शेयर दिस कॉमन मैसेज हाँ, फॉर एवरीवन। हाँ, बी पोलाइट विद देम, क्योंकि होता हम्म। क्या है, गोइंग थ्रू फिजिकल पेन, या जो मम्मी है, जो रिलेट क्लोज वन है, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग एंड दे आर हेल्पिंग। तो कभी कभी हम लोग मैंने डर के मारे, टेंशन में, स्ट्रेस में चिड़चिड़ हो जाते हैं। हम्म, तो उसमें भी मैंने वो थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, ये सब है, देखते केयर हैं। टेकर स्ट्रेस, एक वो भी बहुत चीज। हाँ, जो केयर कर रहा है उसको भी सेम जर्नी है, लेकिन वो उससे पेन नहीं ले रहा है। हाँ, And in some ways, it may be even more painful to see your loved one suffering and just be a bystander, हम्म, you know?
So that is so important. I think वो जो एक कनेक्शन है, जो सोशल कनेक्शन, जो हम लोग कभी कभी हाँ, लोगों को लगता है मे बी बेटर नॉट टू टॉक, क्या बात यस करेंगे, यस यस, ऑकवर्ड हो जाते हैं, यू नो। हाँ 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 हाँ, ये है जब क्या बात करो, एक ही बात तो होगा, तो ये ना करके ठीक है, वो एक ही बात हो रहा है तो थोड़ा सुन लो। हाँ, राइट। देखियो जे everyone is fighting in their own way. यस, हाँ, यस, everybody's in life, in their life there is a মানে মানে inside outside war is there always going on. यस, ट्रू। तो कोई कोई बोलना चाहते, अगर कोई अगर बोलना चाहते हैं ना, सुन लो। वो इसलिए नहीं बोलना चाहते ही वांट्स टू हेल्प फ्रॉम यू और शी वांट्स टू हेल्प फ्रॉम यू, वो इसलिए बोलना चाहते हैं, वो खुद को खाली करना चाहते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, यस। ये है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बंशरी, कि आपको डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, बिकॉज बहुत एक ओह, इट इज अ सोसाइटी वेरी में। गुड हाँ, रिलेशन। सो प्लीज टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है कि तुमने बिल्कुल भरोसा हाँ, करके किया, लाइक यू डॉक्टर, ट्रस्टेड देम yes, कंप्लीटली। doctor and nurse in Jupiter हम्म, Hospital, literally their tagline is patients first, हम्म, and they are literally live by that tagline, patient first. Even जिष्णु का जो डॉक्टर है, डॉक्टर दीपांजन हलदर, हम्म, even still today whenever I মানে message him, हाँ, he reply always within 1 minute or 2 minutes, सी still दैट। today. हम्म, And um, सारे नर्स और ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स रहते हैं, सिर्फ वो हम्म, माने ऑन्कोलॉजिस्ट एक नहीं रहते, हाँ, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स रखते हैं, एंड एवरीवन हम्म, so cooperative and they listen जो what is going on, ये है। इवन अभी भी वो जो वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ ना, एवरी डॉक्टर नेवर मैंने जो पूछना है, जितना देर तक बैठ के पूछना है पूछ लो, जो कंसर्न है पूछ लो, दे आर रेडी टू टेल यू। नाइस। एंड हमारे जो डॉक्टर थे, जिष्णु का जो डॉक्टर था, हमने तो देखा है ना, मैंने उसका बाय चांस जितने भी क्रिटिकल कंडीशन हुआ है ना, हॉस्पिटल में रहते हुए हुआ है, जैसे डॉक्टर को पता चला ना, विद इन 1 minute ही इज देयर, एंड जब तक वो ठीक नहीं हुआ, नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तब तक ही वाज देयर। दैट्स व्हाट इवन इट। रात में भी 9 9:30 बजे आके भी एक बार देख के जाते थे, जा अभी ठीक है ना, ऑल ओके ना। ये है। एंड सारे डॉक्टर, जुपिटर के सारे डॉक्टर इज लाइक दैट। ये तो है, नर्स भी, नर्स, बॉयज एंड सिस्टर, मौसी, सारे, मैंने आई मैंने वी गेट हेल्प फ्रॉम द हॉस्पिटल फुल्ली, मैं तो ये तो बोलूंगी। एंड डॉक्टर दीपांजन हलदर इज रियली अ गुड डॉक्टर एंड गुड ह्यूमन। सो एज अ पेरेंट, जब आप डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड वंस दे टेल यू दैट इट्स क्योरेबल, then obviously there may be many different modes of treatment. यस So यस। talk a little about your experience with this aspect. In that case, like my sons have two type of mutation. Hmm, हाँ, एक है मल्टीपल क्रोमोसोम हो जाना, hmm, ये कॉमन है, hmm, और हर एक एडोलेसेंट ब्लड कैंसर पेशेंट का होता है, मैक्सिमम 99%, hmm, जब मल्टीपल क्रोमोसोम ग्रो हो जाए रैंडमली। तो मेरा बेटा के साथ भी हुआ था। मेरा बेटा के साथ और एक जो चीज हुआ था, जो 21 नंबर जो जीन होते हैं, hmm, hmm, जो डिसाइड करते यू आर डाउन सिंड्रोम बेबी हो कि नहीं, मेंटल डेवलपमेंट का, फिजिकल ग्रोथ का जो जीन है, hmm, वो 3 हो गया था। इसको कहते हैं ट्राइसोमी hmm. जीन। हाँ, तो वो कैंसर से उसका वो 3 हो गया था। तो इन दैट केस
डॉक्टर वाज वरीड, क्योंकि ये बहुत ही रेयर था, लाखों में एक होता है या वो भी नहीं, लेकिन उसको हुआ था। तो केमोथेरेपी से ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को रेडी करवा दिया था। सेकेंड 3 फेजेस में ट्रीटमेंट हुआ था, इंटेंसिव, मोर इंटेंसिव और उसके कंटिन्यूएशन। एक एक फेज 2 मंथ का होता है, ऐसे 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट, तो एक जब केमो देते हैं एक सर्टेन नंबर माने ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट एक सर्टेन लेवल तक होना चाहिए, उसके नीचे अगर होगा तो केमोथेरेपी नहीं होगा। एंड केमो जब मेडिसिन देते हैं उसके माने 5-6 डेज उसको डाउन होता ही होता है। और जब उस टाइम माने डब्ल्यूबीसी कम होते हैं तो इन्फेक्शन का डर बहुत हो जाता है, तो उसी इन्फेक्शन के लिए हॉस्पिटल में ही माने एडमिट होना पड़ता है, जो मेरे बेटे का बहुत लॉन्ग पीरियड चला था। हाँ, तो इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटलाइज्ड होता था। तो 9 मंथ उसने माने 9 मंथ उसका ट्रीटमेंट चला, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 मंथ ही वाज इन हॉस्पिटल। तो उसका ट्राइसोमी जीन जो हो गया था, वो अगर उसका माने ये है, अच्छा बात है ये, जो उसको केमोथेरेपी से ठीक हो गया था, जिसके कारण उसको सेकेंड टाइम एमआरडी माने ब्लड बोन मैरो टेस्ट करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर टोल्ड अस जे ना ये ठीक हो जाएगा, माने वो उसके पहले नहीं बोल रहे थे। तो इन दैट केस बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक डोनर से लिया जाता है और एक अपने बॉडी से लेके हेल्दी ब्लड सेल लेके उसमें से माने स्टेम सेल लेके फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट के बॉडी में। और डोनर के साथ जो होते हैं ना, तो सिबलिंग, एकमात्र सिबलिंग के साथ ही मैच होता है, वो भी 25%, ज्यादा नहीं। तो अगर नहीं होता है तब तो बाहर से डोनर लेना पड़ता है। तो जब वो एक ये होते हैं, तो हमारे केस में भी वो मैचिंग किया गया था, तो इन दोनों का 100% मैच हो गया था। लेकिन जिनका जितना कम मैच होगा, मिनिमम 6 जेनेटिक माने 6 पॉइंट मैच होना ही होना है, उसके नीचे अगर होगा तो वो माने ट्रांसप्लांट नहीं होगा। जितना कम माने मैच होता है, ट्रीटमेंट उसका उतना ज्यादा होता है, उसका मेडिसिन उतना कॉस्ट बढ़ जाता है, उसके माने ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, माने वो जीन के ऊपर निर्भर होता है। और इसके लिए जिसका मैच नहीं होता है, इंटरनेशनली एक ये है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड माने ब्लड स्टेम सेल माने बैंक है वो, तो जिसके अगर जरूरत होता है वर्ल्ड के किसी के माने किसी भी कोने से, वो स्टेम सेल्स अगर मैच होता है किसी डोनर के साथ, वो वहां से मंगवाते हैं। ये डॉक्टर ही करते हैं, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब भी किसी की जरूरत होते है, अगर सिबलिंग के साथ नहीं मैच हुआ, जैसे मैंने एक मैंने बच्चे के बारे में बताई ना, उसके मम्मी ने दिया था, तो उसके कोई भाई बहन नहीं था, तो जिसके कारण उसके मम्मी को देना पड़ा, तो उसके मम्मी के साथ उसको 6 जीन्स मैच हुआ था। तो इसीलिए डॉक्टर ने किया है, जो कम से कम 60% मैच हो रहा है, तो इसीलिए वो ये किया था। लेकिन वो माने जितना कम होगा उतना माने खर्चा भी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए एनजीओज है, हॉस्पिटल्स है, दे आर हेल्पिंग फॉर दैट। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, DKMS। हाँ, एक ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 है। तो DKMS है, बहुत पुराना है, 1991 में माने वो ऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में।
मेन ये है, वो लोग ही माने स्टेम सेल्स माने प्रिजर्व करते हैं और जिनको जरूरत होता है वर्ल्ड वाइड वो लोग भेज देते हैं। वेरी इजी। माने आप साइट में जाके रजिस्टर करो, वो लोग स्वाइप किट भेज देंगे, सलाइवा से वो स्वाइप आपको कलेक्ट करना है, फिर वो किट में बंद करके फिर उन लोगों को बोलो जो आके ले जाइए, वो ले जाएंगे आपका, फिर वो लोग माने टेस्ट करके वो प्रिजर्व करके रख देंगे और जिनके साथ मैच होगा फिर आपको पूछा जाएगा जो डू यू वांट टू डोनेट, जैसे इनके साथ मैच हुआ है आप क्या डोनेट कर सकते हो, करोगे क्या? और इट इज जैसे प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं ना, सेम थिंग। प्लेटलेट में क्या होता है, आपका ब्लड एक हाथ से निकालते हैं, उनमें से प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं और फिर दोबारा वही ब्लड आपके बॉडी में भेज देते हैं। हाँ, तो सेम थिंग, उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक ही दिन का 4-5 घंटे का बात है, बस वो एक करना है माने होता है। तो कोई भी दे सकते हैं, कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, करने से कम किसी एक का तो लाइफ बचेगा। हाँ, Yes, तो ये एक है that's very important information, और बहुत कैंसर के ऊपर, ब्लड कैंसर के ऊपर बहुत एडवांस माने रिसर्च इन इंडिया एंड बाहर में भी हो रहा है। हाँ, तो जस्ट बी अवेयर। एंड और एक चीज मैं बोलूंगी, जो सोशल मीडिया में बहुत सारे माने अल्टरनेटिव थेरेपी, जो ये करने से कैंसर नहीं होगा, ये करने से कैंसर नहीं होगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। कैंसर इज द डिजीज ऑफ सेल्स, किसी को भी कभी भी एट एनी एज माने ऑफ लाइफ, इन लाइफ हो सकता है। हाँ, हाँ, ये मेनली कैंसर इज अ डिजीज ऑफ सेल्स। हाँ, तो इसका ये सेल में कौन से पोर्शन माने प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, ये काफी इलाबोरेट एंड काफी टेक्निकल ये है, और ये सो मच टेक्निकल, और ये सिर्फ केमिकल से ही ठीक होता है। तो दैट्स इट्स नेम इज केमोथेरापी। हाँ, तो इसमें कोई अल्टरनेटिव थेरेपी जो है मार्केट में, हो सकता है आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका होता ही नहीं है ऐसे। तो इसीलिए डू नॉट रिलाई ऑन सोशल मीडिया माने रेमेडीज एंड राइट अप्स। Just if you have whatever questions you have, whatever concern you have, discuss with the doctor. मैंने बोला ना, सारे डॉक्टर they are ready to help you. इवन टाटा सेंटर में भी दे नेवर माने वो लोग भी कभी गुस्सा नहीं, हमने नहीं गया वो माने मैंने सुना है, वो लोग कभी गुस्सा नहीं करते। जितना डिटेल्स में आप बात करना चाहते हो बात करेंगे, वो लोग काउंसलिंग करेंगे। अगर उन लोगों को पता चलता है जो माने पेशेंट्स का लाइफ इज इन डेंजर, दे आर माने थ्रू काउंसलिंग दे आर रेडी करते हैं जे नहीं ये आपको ये मानना पड़ेगा, ये होगा, आप कैसे कोप अप करोगे, क्या करोगे, सारा कुछ वो लोग करते हैं सारे जगह में। इवन सब डॉक्टर करते हैं कब क्या होगा कि नहीं होगा। तो ओनली रिलाई ऑन डॉक्टर्स माने, और इधर ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं। डॉक्टर जैसे खाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे ही खाओ, सिंपल सा फूड खाओ, बाहर का मत खाओ, हाइजीन रहो, बस दैट्स इट। लेकिन रिलाई ऑन मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर एंड नर्सेस, दे आर द फर्स्ट एंड पर्सन टू क्योर यू। कभी कभी होता है ना, जब हम लोग रॉ जूस खा लेते, नहीं कैंसर में ये माने ये खाने से कैंसर नहीं होते, लेकिन नहीं, वो उसमें किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है और उस टाइम बहुत ज्यादा वीक रहते हैं। तो इसीलिए जैसे वो लोग बोलते थे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कोई भी काढ़ा ये वो सारा कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि किडनी एंड लिवर को होल बॉडी ऑर्गन गेट वीक माने बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ होता है ना, तो उन लोगों को प्रेशर आ जाते हैं, तो डॉक्टर को ही ज्यादा
प्रॉब्लम होते हैं जो ट्रीटमेंट करने में, इसीलिए जैसे ही बोल रहे हैं मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस. So, Vanishri, before we conclude this एक संवाद with you, एक मैसेज तो तुम उनके लिए दो जो फैमिली मेंबर्स हैं ऑफ कैंसर वॉरियर्स, और दूसरा मैसेज उनके लिए दो who are the people around the society around that family. जो जिनके घर में कैंसर पेशेंट है मैं उनको बोलूँगी जे प्लीज़ हैंडल दिस सिचुएशन विथ लव एंड केयर एंड utmost पेशेंस की ज़रूरत है, एंड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस स्ट्रिक्टली, और कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है. सारा कुछ डॉक्टर ही करेंगे, और हंसी खुशी का माहौल रखिए घर में. ये ठीक है, हुआ है तो दूसरा कुछ करिए. हाँ, ये एक है. और अराउंड माने इन द सोसाइटी मैं बोलूँगी बी पोलाइट, जस्ट बी पेशेंट. हाँ, lend your precious time to listen their sorrow, grief and their painful experience which they are going through. जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं. पेशेंट और कुछ नहीं चाहते, जस्ट उनके पास बैठिए, थोड़ा सा बातें करिए. अगर वो बातें नहीं सुनना है तो दूसरा बातें करिए जो उनको अच्छा लगता है, जो उनमें इंटरेस्ट है. लेकिन बात करिए. Vanishri, as a family, आप लोग ने जो ये this journey which you have all been through together, now when you look back, how did it change your family? In what way did it impact your family in the long term? Physically, health wise, we are very much concerned. We become very much concerned. We don't small changes we are noticing it and go to the doctor. ये तो है, जो पहले इग्नोर करते थे वो नहीं इग्नोर करते हैं. One thing, बॉन्डिंग बढ़ जाते हैं. Yes. एक दूसरे के ऊपर बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन, ये सब बढ़ जाते हैं. And one last question I have to ask you. I've been seeing you over the whole experience for several times. And you always come across as very composed, and there's a very great deal of strength inside of you. वो कहाँ से आती है? पता नहीं, जिष्णु के साथ इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है. And all the thing I handle when he was 2 years old. just उसका बर्थडे के नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते थे, तो हाउस फ्लाई ना वहाँ पे तब बहुत ज्यादा था. तो मैंने दरवाजा ऐसे, नेट वाला दरवाजा होता है वो ऑटोमेटिकली बंद क्लोज हो जाते हैं, तो मैंने ऐसे करके ना वो स्प्रे कर रही थी हाउस फ्लाई के लिए. जिष्णु ने दौड़ के आया और उसने हाथ वो दरवाजा के दो बीच में होता है ना, वहां पे घुसाया, और मैंने दरवाजा बंद किया और हाथ उसमें घुसाया. ये सेम टाइम में हुआ है. उसके बाद मैंने देखा उसके उंगली के ऊपर का पोर्शन कट गया है पूरा. तो मैं वो टुकड़ा हुआ फिंगर जो है वो हाथ में लेके, मानस का हाल खराब हो गया था, वो लेके मैं हॉस्पिटल गई. हॉस्पिटल में जाके बोली जे ये स्टिच करके दोबारा लग सकता है? बोली नहीं, ये नहीं लगेगा. तो उन लोगों ने बैंडेज करके सारा कुछ दे दिया. फिर 2-3 दिन बैंडेज करने के लिए हॉस्पिटल गई. उसके बाद बोला जो आप घर में कर सकते हो? तो हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करवा दूंगी. तो मैंने किया. फिर मानस जब कुवैत में था, वन डे जिष्णु और मैं मार्केट गई थी, तो कुछ सामान कपड़ा वगैरह खरीद के लाई थी. तो उसमें टैग लगाने का एक वो प्लास्टिक का वायर रहते हैं ना, जिसमें एक कोने में पी रहते हैं शार्प, ये
उसने घर में आके खेलते खेलते वो नाक में घुसा दिया. ही इज वेरी ब्रेव बॉय. Brave mother. तो तो मैं वो रात में सेड माने इट वाज फरवरी. मानस वाज नॉट इन चंडीगढ़, वो कुवैत में था. मोहर के एग्जाम है और 12 का एग्जाम. मैं माने 6 o'clock उसको हॉस्पिटल लेके गई. संडे था, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था और ईएनटी स्पेशलिस्ट घर में माने हॉस्पिटल में नहीं रहते, वो लोग बुलाते हैं. तो ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं था, उनको बुलाया. वो बोले जी नहीं, हम तो मोहाली में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ. तो मैंने बोला जी अगर वो नहीं आ सकते तो दूसरा कुछ डॉक्टर का मुझे ये दे दीजिए. तो बोल के नहीं हमारे पास नहीं है. तब उन लोगों के साथ मैंने झगड़ा किया जी आप ऐसा कैसे बोल सकते, जो नहीं है आपके पास होगा, आपके पैनल में नहीं है इसका मतलब तो ये नहीं है जो आप नहीं शेयर कर सकते हो. ये इमरजेंसी है, इसके लिए तो मुझे तो करना तो पड़ेगा. मुझे नहीं है. अच्छा तो तब तो डॉक्टर को बुलाइए. मैं तो तब तक नहीं जाऊंगी. मैं बैठी रही वहां पे, बैठी रही मैं. और वो भी रोता होता नहीं है, वो भी चुपचाप लेटा हुआ है. हाँ, तो जो लोग कैथीटर लगाते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, दे आर एक्सपर्ट. हाँ, जो कैथीटर कहाँ पे कैसे लगाते हैं. तो वो आए तो आप बोले मैडम क्या हुआ. अच्छा देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ है. तो डॉक्टर को बुला रही हूँ, मैंने बुलाने के लिए बोली हूँ. तो लेट कर रहे डॉक्टर, 2 घंटा बाद आएंगे. अच्छा कहाँ है पेशेंट. अच्छा उधर है. तो उन्होंने गए तो निकाल दिया. अच्छा आपने कैसे निकाला. अच्छा मैडम मैं कैथीटर ही मैंने ये कैथीटर लगाती हूँ हमेशा, तो मुझे पता है कैसे निकलना है. तो ऐसा ऐसा काम किया है. और वो भी मैं रात में बैठे, मैंने डॉक्टर ये बोले कैसे घुसाया किया बोले जो उसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा. मुझे ऑपरेशन करना है तो कर दीजिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तब भी वो भी मैं करवा दूंगी. लेकिन है मैं उस टाइम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डरती हूँ जब मैं सोचती हूँ. तो जब वो घटना घट जाते हैं ना, जब मैं अकेले बैठी रहती हूँ तब मेनली रात में वो सारे दिमाग में रात में आते, तब मुझे डर लगता है अरे बस ऐसा अगर ये हो जाता तो वो हो जाता. तो वो हो गया है, जो होकर करना है वो हो गया है. लेकिन उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट मुझे रात में होता है. अगर ये हो जाता तो वो हो जाता तो क्या होता. उसके लिए नींद खराब होती है मेरी. ये एक होता है. You're an inspiration, Banishri. Give a message of hope to everyone who's battling cancer. ये मैं बोलूंगी जे खुद के ऊपर विश्वास रखिए. मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर नर्स इन लोगों के ऊपर इमेंसली मैंने विश्वास रखिए. एंड हो सके तो पढ़ाई करिए, स्टडी करिए. ये आपको स्ट्रेंथ ही देंगे और कुछ नहीं. डर कम हो जाता है. और उसमें एक ये होता है दोनों में एक फेथ, डॉक्टर्स एंड पेशेंट एंड क्लोज वन में एक फेथ ये होता है, बिलीवनेस Trust. होते हैं और वो इफेक्ट आते हैं. So you have to trust the doctor, you have to trust the process, and you have to have मेडिकल faith. साइंस, हाँ मेडिकल साइंस के ऊपर मेरा रियली ट्रिमेंडस फेथ है एंड बिलीव है. they are doing relentlessly work on this মানে cancer. If you read about the medical journal, ये हो जाओगे जो क्या क्या ना हो रहा है, क्या क्या ना चल रहा है. तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा. So I think it is in the right of things, Banishri, before we conclude, give a message to the doctors and their team also. उन लोगों को कुछ मैसेज देने की जरूरत नहीं है. वो लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक दे आर गॉड. दे आर गॉड. और मैंने ये देखा है जे हु इज गॉड और हु इज डिवोटी इन द हॉस्पिटल. दे आर गॉड. तो रिलाई ऑन देम, बिलीव देम, that is the main thing. I have to ask you this, Banishri.
because the doctors you interacted with, उन्होंने कुछ उनका behavior तुम्हारे साथ जैसा था, that is inspiring you to speak like this about them. Please tell us a little bit about that behavior, ताकि जो दूसरे doctors हैं who are younger, who are less experienced, they can learn So from. one thing, whenever उसका ब्लड काउंट जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होता था ना, तो फर्स्ट थिंग डॉक्टर आके जब भी बताते थे तो मैं बोलते थैंक यू वेरी मच. मैं ऑलवेज थैंक मैंने डॉक्टर को ही दिया है. तो मैंने ये कभी नहीं बोला थैंक गॉड ये ठीक मैंने बढ़ गया है. नहीं, थैंक यू मैंने यू आर डूइंग दिस. तो एक दिन डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे पता है आप थैंक यू तो आप मुझे ही बोलेंगे. अच्छा हाँ, यू आर डूइंग दिस, और कोई दूसरा आके नहीं कर रहा है, ऊपर से भी कोई आके नहीं कर रहा है. योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज इज डूइंग दिस. तो थैंक्स मैं दूसरों को किसी को नहीं बोलने जाऊंगी, आपको ही बोलूंगी. तो यही है जे. और हाँ, मैंने रेस्पेक्ट जिनका देना है उनको ही दीजिए. doctors really are doing very hard job. they have a very hard job. उन लोगों को पता है कि मैं किसी का लाइफ मेरे हाथ में है. Yes. they think about the मैंने आफ्टर मैंने आप वहां से निकल के आ गए तब भी वो लोग चिंता करते जी ये पेशेंट के साथ ये हो रहा है, ये क्या कैसे क्या करेंगे. तो डॉक्टर के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. Very डॉक्टर के important. साथ एक लवली बिहेवियर होना चाहिए. डॉक्टर पहले जो बोलते हैं वो कभी खराब नहीं बोलते. खराब माने देखो गुड एंड बैड इन एवरीवेयर इज देयर. लेकिन डॉक्टर जब एडवाइस देते हैं वो लोग अच्छे बोल के ही देते हैं. उसमें वो रिलाई करके देखना चाहिए पहले. उसमें अगर आप डाउट होएंगे ये होएंगे तो और काम नहीं करेगा. क्योंकि they are trained for that, they have knowledge, they have experience which we don't have. Thank you so much for your time and for speaking to us and for such a heartfelt story which you have shared, Banshri. I am so grateful. I can't tell you, it takes a lot of courage to speak about your own pain. It is all your love. And I have very much thank you to you. You have helped me from come out that fear, that what I have gone through at that time. Yes, I always thank you. I'm sending you a big hug, Banshri, and Same to you. all the best from here on. ये जो Banshri की story है, she's a brave mother, a resilient mother, and I'm sure that our episode together will inspire anyone who's struggling and give them at least that positivity, the sunshine they need. And together is where we should be in such situations. So Together we make a better world. together we'll make a better world. Yes. Thanks a lot for being on Ek Samvad. Thank you, Pragya. The Really, best. it is very nice to talk to you always. I know. Same here. Same here.